So in today's session, what we are going to target is parts of a speech, of course. And in that, if I be specific, then that would be noun, pronoun, and adjective. Okay. We cannot deny the importance of parts of a speech in grammar. So we have to go little slightly slow so that we can grasp, the main component of the grammars. Okay. So that it would not be a burden while making the sentences. एक बार हम समझ लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, ऐसी पढ़ाई करनी है हमें। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लीनली क्रिस्टल तरीके से समझ के चलना है, एंड दैट्स व्हाट माय एम इज, एंड आई होप यू ऑल अग्री विद मी इन द ऑन दिस पार्ट. Okay, so with that I'm sharing my screen, and let's begin. Desktop 1, just a moment. Okay, where is the slide? This one. I can do this, then I can do this. Okay, I have to disable this control bar. Okay, and then I can do this. Okay, hope my audio my presentation is visible to you guys. Yes. Okay, thank you. All right, so first and the most important part of parts of a speech is noun, and that is the first one from where we will start learning. Okay, so noun, though I have written that definition, but I would like to know from one of you guys, kya hai noun? Noun is the name of person, place, or things. Like person, like Rahul, place like Gurgaon, things like table, chair. Yes. Noun is a naming word. Everything is name. It can be noun. Yes, yes, yes. So you both are right. Noun is a name of place, thing, or person. Take a naming word. But कैटेगरी की जो बात है नाउन की, वो किसी और पर्पस से यूज की जा सकती है, बट इफ आई कैन कंक्लूड नाउन, then noun is a name of everything. Right. On this planet, whatever things you see, all has some name, all have some name, and that name is given by some human being, right? So that's why I say name of everything is a noun. कोई ऐसा चीज आप आसपास में देख करके बताओ जिसका नाम नहीं है? हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है. सो कैटेगरी बनाई गई है, थोड़े बोलने के लिए बोल देते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस, थिंग और ऑब्स्ट्रैक्ट. ऑब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक फीलिंग है. लाइक इफ आई से like smell, like smile. स्माइल हो गया, नहीं स्माइल, यस स्माइल, you can only feel. Smile you can't see. you cannot touch. Yes, abstract is what those things. Abstract is those word which cannot be touched, which can be only felt. So that is abstract. ठीक है, तो ये कैटेगरी बताने के लिए, समझाने के लिए, मतलब अगर बेसिक ग्रामर जो पढ़ता है उसको समझाने के लिए कि किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी ऑब्स्ट्रैक्ट का नाम है, किसी क्रिएचर का नाम है. बट इन शॉर्ट, सिंस यू ऑल आर mature, now you can relate to this, so you can relate like this, that name of everything. Okay, right. Noun can be name of person, can be name of thing, can be name of place or any idea, name of anything. Okay, so we don't do invest a lot of time in understanding noun, because noun is name of everything on this planet. Okay, now we need to know certain things, and
what are those certain things are proper noun? थोड़ा कैटेगरी है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का ये, ठीक है। अगर बुक में आप देखोगे तो आपको वैसे भी दिख जाएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, वो आपको बुक्स में दिख जाएंगे ग्रामर के। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न का मतलब क्या है, जो आजकल के टाइम में यूज हो रहा है, ये 3 टाइप्स का ही होता है। अब क्लासिफिकेशन क्या जानना आपके लिए जरूरी है? yes, if you could know, that would be good, because somehow we will be relating the at least this thing, plural and singular, नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा ये कैटेगरी जानना जरूरी है। देखिए, प्रॉपर नाउन होता है जिसका प्रॉपर किसी ने नाम रखा हुआ है, ऑफ कोर्स सबका नाम किसी ह्यूमन बीइंग ने रखा है, राइट। बट प्रॉपर नाम जैसे कि सोहन, नेपाल, संडे, जनवरी, हिमालय, ये प्रॉपर एक तरीके से रखा हुआ है, ये नाम है, ओके। और काउंटेबल नाउन, यहाँ पे कैटेगरी हो सकती है। देखिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ सकते हो। काउंटेबल नाउन का मतलब है कि द थिंग विच कैन बी काउंटेड इन अ नंबर, ठीक है। जैसे काउ है, इट कैन बी काउंटेड इन अ नंबर 1 2 3 4। डॉग है, काउंट हो सकता है। क्लास है, काउंट हो सकता है। स्टार है, नाउ I know some of you will say that a star कैसे काउंट हो सकता है, बट इन अ लिटरल मीनिंग अगर आप देखो तो काउंट तो किया जा सकता है, बस ये है कि हम नहीं कर सकते इतने सारे स्टार काउंट। बट इन दैट सेंस आई हैव रिटन दिस। रिवर है, आर्मी है, स्टेट है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑयल है, वाटर है, लव है, ब्यूटी है एंड नॉलेज है। दिस कैन नॉट बी काउंटेड। अग्री? अग्री। सो यहाँ पे देखिए, कैची पॉइंट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट प्लूरल एंड an is not applied with the uncountable noun। इन सारे नाउन के साथ में जो अनकाउंटेबल नाउन है, वो कभी ऐसे आप यूज नहीं कर सकते हो, आप सिंगुलर उसको नहीं बना सकते हो, ठीक है। आप वो जैसा है वैसे ही रहेगा, आप ए एन नहीं लगा सकते हो अनकाउंटेबल। अ वाटर नहीं बोल सकते हो, ठीक है, या एन ऑयल नहीं बोल सकते हो, और लव नहीं बोल सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन वो जिस फॉर्म में है वैसे ही है, उसको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, प्लूरली कंसीडर कर सकते हो उसको। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. एनी डाउट? कप ऑफ वाटर, ये कैसे होगा? अ कप ऑफ वाटर। हाँ, अ कप ऑफ वाटर मतलब कप की काउंटिंग हो रही है। अ कप ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, वो ग्लास की काउंटिंग हो रही है, ना कि वाटर को। अ वाटर बोलोगे, दैट इज अ रॉन्ग। और लव नहीं हो सकता है। लव कैसे काउंट किया जा सकता है कि ये 1 है 2 है, राइट। सो द होल पॉइंट इज टू नो दिस कैटेगरी कि आप प्रॉपर नाउन हो जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है, ऐसे जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। इसमें अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है, जैसे सोहन का प्लूरल नहीं बनेगा, सोहन्स नहीं बोलेंगे, सोहन है, एक ही है, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं काउंट किया जा सकता है। There is no place, no person, nothing of which there is no name। इस प्लानेट पे ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, ठीक है। अगर नाम नहीं है तो कभी ना कभी रख देंगे, ठीक है, लेकिन नाम तो रखना ही पड़ेगा, राइट। नाउन इज अ सिंगुलर इन अ बेस फॉर्म, वी ऐड एस और एस टू मेक इट प्लूरल। बेस फॉर्म में मतलब जैसे बात करें अगर काऊ को, तो ये सिंगुलर में होता है। अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो एस यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बस है, BUS, अगर मुझे प्लूरल करना है तो ES लगाना पड़ेगा, Yes. बसेस बोलना पड़ेगा, राइट। सो आप यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा आप यहाँ पे अटेंशन लेकर आना, क्योंकि ये समझना जरूरी है, बाद में जाकर के इसकी इंपोर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, no. नो। Nobody. हाँ, ये नाउन मुझे नहीं लग रहा है आप लाइफ में कभी भूलोगे। किसी से भी अगर कुछ बताना हो, नाउन इज अ नेम ऑफ एवरीथिंग। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन इज दिस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये इस पे आपका अटेंशन चाहिए मुझे पूरा, एंड आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोनाउन प्रॉपर्ली, बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन होती है लोगों को यूज करने में, ठीक है। कितने सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि एवरीबॉडी के साथ में हैव लगना चाहिए। आई नो दैट आई एम आस्किंग लिटिल आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन, बट थोड़ा सा मैं एवरीबॉडी, सम बडी,
के साथ में have लगना चाहिए. Somebody have stolen my car. क्या होगा? Somebody have होगा या somebody has होगा? Someone. हम तो है भी लिखते हैं, अब पता नहीं व्हाट इज द नहीं, रीजन has होगा. बिहाइंड दिस. इतने सारे बॉडी आते हैं ना, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, सबके साथ में ये सारे सिंगुलर होते हैं. ठीक है, तो ये प्रोनाउन के सारे पार्ट हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसको आप थोड़ा सा डिलीजेंटली इसको सही तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, ओके. आई होप कि एवरीवन इज हैविंग pen and notebook and writing whatever the points they find relevant for them or useful for them. I hope everyone is writing, right? There is no okay, fine. Because बहुत important है. आप नोट बिना ऐसे नोटबुक लिखे हुए आप ये समझो कि रिवाइज करना हो तो उस समय आपको दिक्कत होगी. ठीक है, ये एक सेंटेंस है. अमन इज इन 8th class. अमन is an intelligent boy. Aman's father is a businessman. Can somebody tell me what is wrong in these sentences, because there are multiple sentences? Can somebody tell me what is the wrong or what is the improvement? If there is nothing wrong, then what is the improvement area that you see in this sentence? क्या improve किया जा सकता है? We can use Aman is in the 8th class. He is an intelligent boy and his father is a businessman. We can use he. Very good. Very good. Well done. Yes. So here the thing which can be improved is we are repeating aman in every sentence, and that should not be done because it will not sound correct. If you are speaking in front of somebody and you are saying something like this will sound monotonous. Monotonous का मतलब क्या है? वो repetitive sound करेगा, right? अच्छा, मैं जब बोल रहा होता हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपको कोई वर्ड अगर पता चलता है नया, तो आप सीखने की अगर क्यूरियोसिटी रखते हैं वर्ड को, तो आप नोट डाउन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे और उसका मीनिंग पढ़ के समझेंगे. बिकॉज दीज आर द फ्रीक्वेंट वर्ड. इफ यू आर हियरिंग फ्रॉम योर फ्रेंड, योर colleague or boss, that means these are the frequent words which are being used, so you must know the meaning of those words. So write कर लीजिएगा कभी कभी. अमन इज इन, हाँ, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरिया था कि उसमें प्रोनाउन नहीं था. Now, if I read the same meaning sentence in this way, Aman is in 8th class, he is an intelligent boy, his father is a businessman. Now you will find that, okay, it sounds little different, and of course it gives meaning the same that the earlier sentence was giving, right? So इसमें improvement किया गया pronoun का use करके. यहाँ pronoun है he और his. Now, if I say about the next sentence, Ravi is an agriculture engineer who is going to speak today. Now, Ravi is an agriculture engineer who यहाँ पे WHO, यहाँ पे who क्या किसके बारे में बात कर रहा है? रवि उसके बारे में, रवि के बारे में. रवि के बारे में. Now, yes, रवि के बारे में बात कर रहा है. और he और his किसके बारे में बात कर रहा था? अमन के बारे में. Now, I will soon come to the point where which I want to make here. Just linger on this. थोड़ा सा इस पे अटके रहो, है ना? तो my best friend Dilip has awesome bike. ठीक है, अनुज. Yeah, my best friend Dilip has awesome bike who bought it last year. ठीक है, इसमें प्रोनाउन कौन, प्रोनाउन अभी नहीं बोलूंगा. ये WH किसके बारे में बात कर रहा है? दिलीप के बारे में. तो यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड दिलीप एक क्या है? एक फ्रेज है. एंड फ्रेज इज नथिंग बट व्हेन यू यूज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब एक साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज. आप बिल्कुल ये याद रखना. कभी भी अपने दिमाग में कहीं से भी आप सुनो कि फ्रेज होता क्या है, वो कुछ नहीं है. एक से ज्यादा अगर जहाँ पे वर्ड यूज किया गया वो फ्रेज है. सो हियर द अंडरलाइन वर्ड्स आर फ्रेज. ओके, माय बेस्ट फ्रेंड दिलीप. तो एक फ्रेज के बदले में क्या यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे? हु. अगर ये हु नहीं होता तो मैं कैसे बोल रहा होता? माय बेस्ट फ्रेंड हैज ऑसम बाइक, माय बेस्ट फ्रेंड दिलीप बॉट इट लास्ट ईयर. ऐसा बोल रहा होता. मतलब एक लंबा सा सेंटेंस फिर से मुझे बोलना पड़ता. नाउ हियर कम्स द डेफिनेशन. प्रोनाउन इज अ वर्ड which replaces noun or pronoun, phrases or anything functioning as a noun. Very simple, clear definition.
प्रोनाउन We वो can say what is the last year. We can say like that. क्या या अवनीश से what you are saying? We can use a he. He bought. Yes, Avnish, you are completely right. I could have used he, but I wanted to show something that WHO is also a pronoun. That is the reason I used it. I deliberately use this word here. मैं जानबूझ करके ये word. Last year. Yes, Avnish, I think you are breaking, and that's why you are not able to catch what I am saying. So, if you could understand. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जानबूझकर WHO यूज किया है क्योंकि दिस इज आल्सो अ प्रोनाउन. समबडी नोज दैट ही, सी, इट, ने, क्या कहते हैं कि आई, वी, यही सारे प्रोनाउन होते हैं. नो, ये भी प्रोनाउन होते हैं. हम अभी कुछ ही जस्ट मोमेंट में हम प्रोनाउन के कैटेगरी के बारे में जानेंगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन आप याद कर लो कि प्रोनाउन वो वैसा वर्ड है जो रिप्लेस करता है नाउन या नाउन फ्रेज को या एनीथिंग फंक्शनिंग एज अ नाउन. Is it clear, guys? Yes. Pronoun replaces noun. Noun के बदले में, हिंदी में हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, ये जो नाउन के बदले में आए. Yes, वो नाउन के जगह पे यूज होगा. कोई भी नाम होगा उसके जगह पे प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है. ये क्या था, माय बेस्ट फ्रेंड दिलीप, ये फ्रेज था, उसके जगह पे मैंने WHO यूज किया है. या एनीथिंग फंक्शनिंग एज ए नाउन. इसका डेफिनेशन आपको थोड़े से वेट करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे फंक्शन एज ए नाउन का मतलब क्या है. मतलब कोई भी चीज ऐसे फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह. ओके, ऑलराइट, सो शैल आई मूव अहेड? Yes. आर यू गाइस एबल टू ग्रास्प मी? समझ पा रहे हो मुझे? Yes. Yes. ओके, दैट्स ग्रेट. बहुत मैंने सिंपल कैटेगरी बनाया हुआ है प्रोनाउन का. देखो, कैटेगरी जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि वंस यू विल नो द कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, देन यू विल बी यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे. जैसे अभी मैंने पूछा था ना, somebody क्या होगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा. that is where you require to know pronoun categories और उसके ना सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, राइट? तो अभी आप प्रोनाउन के कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू बॉम्बार्ड with lot of information. I have simplified it and I will tell in a very simple and easy way. देखिए, प्रोनाउन के कैटेगरी वैसे 10 आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक में, और होते भी है 10 है, लेकिन वैसे मैंने यहाँ पे 10 को थोड़ा सिंपल करने के लिए 8 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. एंड दिस प्रोनाउन आर पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, okay, let me show through the mouse. Personal pronoun, possessive pronoun, reflexive intensive pronoun, and I can tell you indefinite pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, and reciprocal pronoun. Okay, reciprocal pronoun. These are the categories of pronoun. Getting my point? Yes. Yeah. Now, we will little deep dive in each category to understand where we use these each pronouns. Okay, so if I talk about the first category, that is a personal pronoun. ये personal pronoun होता क्या है? Related to the person. Of course, हम ये सारे जो pronoun है ना, related to person और things के लिए होगा. ठीक है, ये कुछ ऐसा pronoun का category है जो एक से निकल के दूसरा वाला आपको प्रोनाउन का कैटेगरी मिल जाएगा. इसीलिए मैंने इसको इसी एक फ्रेम में रखा हुआ है. जैसे आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होता है, मतलब सब्जेक्टिव ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा, और पॉजेसिव माई होगा और माइन हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव माई सेल्फ हो जाएगा. ये कैटेगरी क्या आपको याद रखनी चाहिए? बिल्कुल याद रखनी चाहिए. ये कोई बिग डील नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हो वंस यू विल अंडरस्टैंड ईच कैटेगरीज केयरफुली. सो पहला कैटेगरी की बात करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के 2 कैटेगरी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव के तौर पे और ऑब्जेक्टिव के तौर पे. सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट पिछले क्लास में, कि सब्जेक्ट इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सब्जेक्ट यूज करो, फिर उसके बाद में वर्ब यूज करो, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करो, राइट? ये एक इंग्लिश की स्ट्रक्चर बोलता है. तो सब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं जो पहले यूज होता है, पहले सेंटेंस के पहले स्टार्टिंग में जो यूज हो रहा होता है, और ऑफ कोर्स जिसके जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात किया जा रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है. सो हियर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज वन व्हिच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, व्हिच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट
यहाँ पे देख सकते हो दे आर ड्राइविंग फास्ट, ठीक है। दे आर ड्राइविंग फास्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे दे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसी का, यानी जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही होता है, दे का देम, वन का वन हो जाएगा। एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। आई विल शो यू अ नाइस पेंटिंग, आई विल शो यू अ नाइस पेंटिंग, ये जो दिखाने का काम है ये आप पे हो रहा है। यू आर माई ऑब्जेक्ट, ओके। आई विल एक्ट माई एक्शन, मेरा एक्शन है दिखाने का, वो आप पे है, मैं आपको दिखाऊंगा। आई विल शो यू अ नाइस पेंटिंग, यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बोलिए। Yes. यस Yes. guys, do you find it boring or what? No, no. Very interesting. Okay, like you are able to relate it, मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस यस यस। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ एक सब्जेक्टिव के रूप में हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ये सारे प्रोनाउन होते हैं, उसी का ऑब्जेक्ट अगर निकालना हो तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि मेरा फ्रेंड फ्लैट ले रहा है और वो पोजीशन लेने जा रहा है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन का मतलब होता है अधिकार जमाना या अधिकार लेना उस जगह की। सो पोजेशन, उसी से मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है, ऑनरशिप शो करता है। जब भी आप इस प्रोनाउंस का यूज करोगे, इन सारे प्रोनाउंस का, कहीं ना कहीं आप पोजीशन दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऑनरशिप दिखा रहे हो। हाउ, सी इट। आप माई कहाँ पे यूज करोगे, when you have to show something as a ownership, right? You will say my car, my laptop, our classes or our class, the ownership दिखा रहे हो। या your book, his laptop, her dress, its feature, their book, one's car, right? ये पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है। And when you use pronoun plus noun, it becomes adjective. This is a very important thing you should know. Adjective we will learn after this pronoun, but here I want to tell you that when you add noun with the pronoun, it becomes adjective. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ my car, this is my car, तो यहाँ पे my car क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा वाला कार, मैं ये बोल सकता था दिस इज अ कार, एक सिंपल मीनिंग देता था कि यह कार है। द मोमेंट आई से दिस इज माई कार, समहाउ आई एम बीइंग स्पेसिफिक, ये मेरा वाला कार है। सो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। ये वो वाला कार नहीं है, ये मेरा कार है, मतलब कहीं ना कहीं उसको डिस्क्राइब कर रहा है। we will come to know about the adjective, but try to understand here कि when you use pronoun plus noun, it becomes adjective. Is this clear? Yes. And there is another possessive pronoun that is only a pronoun where you cannot use noun along with pronoun. जैसे ये है mine, ours, yours, his, hers, theirs, इनके साथ में आप नाउन नहीं यूज कर सकते। अच्छा, ये मुझे भी काफी दिन तक डाउट रहा था, जहां पे मुझे लगता था ना कि योर्स प्लूरल है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, क्या है, मतलब डाउट रहता था। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, आप अभी देखने के बाद में योर्स का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? आप, योर्स आपका, योर्स तुम्हारा। तुम्हारा। देखिए योर्स हम बोल सकते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए कि आपका मैंने मोबाइल लिया है और मुझे वापस देना है, और मैं बोलूंगा दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, राइट। योर्स हम कब बोलते हैं, जब बिल्कुल एक ये आपका है, मतलब एक पूरा पोजीशन के ऑनरशिप दिखाने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। दिस इज योर बोल सकते थे, ये भी बोल सकते थे दिस इज योर, but it's respective words we can say. रिस्पेक्टिव और कह सकते हो कि थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता, कहने का जो आपका मीनिंग है ना और ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा और ऑनरशिप फील होने लगता है। जैसे बोलते हो दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है, दिस इज माई लैपटॉप एंड दिस लैपटॉप इज माइन, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस फील करो। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस कार इज माइन नॉट योर्स,
ठीक है, अच्छा ये यूज हुआ है इसके लिए, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए। दिस कार इज माइन नॉट योर्स, यहाँ पे एक पोजीशन आ रहा है, ठीक है, ये मेरा कार है। ऑफ कोर्स एक रिस्पेक्ट कह सकते हो अवनीश, बिल्कुल मैं बात आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि एक रिस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें ओनरशिप ज्यादा फील होता है व्हेन द मोमेंट यू से द मोमेंट यू से योर्स। अगर यहाँ पे योर लगाते तो थोड़ा सा कह सकते हो कि कम फील होता है, लेकिन योर्स लगाने के बाद में ज्यादा फील होता है। दिस इज माई कार नॉट योर कार, ठीक है, और उसी सेंटेंस को यहाँ पे बोला गया दिस कार इज माइन नॉट योर्स, तो इसमें पोजीशन ज्यादा फील हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. All right. Now next one is reflexive and intensive pronoun. Now what does this pronoun do is it shows that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. क्या मतलब इसका? जो सब्जेक्ट है ना, वो जो एक्शन हो रहा है वो खुद ही मतलब रिसीव कर रहा है वो चीज का। मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ? आई नो आई एम लिटिल बीइंग एम्बिगुअस, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन वाली हुआ। देखो यहाँ पे देखकर, इसीलिए मैंने थोड़ा हिंदी में लिखा है, बिकॉज आई वांट टू explain it in a very easy way. I will wash the dishes myself. I will wash the dishes myself का मतलब है मैं बर्तन खुद धोऊंगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, यानी कि आई है रिसीविंग द एक्शन, ठीक है, ये खुद ही एक्शन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, मैं बर्तन खुद धोऊंगा। Yes. गेटिंग? Yes. मतलब ये रिसीव, वो एक्शन खुद ही वो मतलब रिसीव कर रहा है, वो एक्शन खुद ही कर रहा है, ये कह सकते हो। जहां पे भी खुद ही वाली ये हिंदी सेंटेंस अगर मिलता है, या आप मीनिंग क्रिएट करना चाहते हो कि मैं यह काम खुद ही करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। अगर आपका बॉस काम देता है कि अनुज कैन यू डू दिस योरसेल्फ, यस सर आई कैन डू दिस माई सेल्फ, राइट। बट देयर आर टू वेज टू से दिस। एक देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव का मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि नॉर्मल तरीके से मैं बोल दूंगा, मैं बर्तन खुद धोऊंगा। इंटेंसिव का मतलब होता है, इंटेंस वो एक वर्ड आपने सुना होगा जिसका मतलब होता है तीव्रता, थोड़ी सी उसकी गहराई, मतलब ज्यादा उसकी वो है, वजन है, कह सकते हो। तो इसमें ज्यादा थोड़ा सा इंटेंसिटी होती है। जैसे मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ विल वॉश द डिशेज, मैं खुद ही बर्तन धोऊंगा, इसमें थोड़ी सी और इंटेंसिटी जगती है। नहीं सर, मैं खुद ही बर्तन धोऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes. there is no big difference, it's a small difference, you can use it interchangeably का मतलब इधर उधर करके चेंज करके यूज कर सकते हो। the whole idea to explain is this कि ये In second sentence, we can use only myself will wash the dishes. sorry Except I couldn't hear you, can you repeat once please? In second sentence, we can use myself will wash the dishes, except I. but grammatically it will be incorrect ना? कैसे हो Okay. आप? ये आप रिफ्लेक्सिव है, सब्जेक्ट कहाँ है इसमें? सब्जेक्ट कहाँ है बताओ? Myself is not showing a ये subject. स्पोकन में चलता है अवनीश, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। Okay. माई सेल्फ विल गो देयर, नहीं, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद ही जाऊंगा, ये होना चाहिए। Okay. Okay. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, नॉट अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन दैट यू कैन यूज लाइक दैट। Okay. If you want to follow the grammar rule, then you have to follow it, right? But Right. spoken में चलता है, so I think you are learning grammar, so you should care about the grammatical rule. You should not care about the spoken, some mistakes, sometime it happens, okay? Right. और थोड़ा सा स्पीकिंग में अगेंस्ट द रूल चले भी जाते हैं स्पीकिंग में, सो यू ऑल नो अबाउट दिस। आई थिंक अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत होता है स्पीकिंग में, ओके? सो दीज आर 3 types of pronoun which has, you can say, which have 5 types ultimately, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मिल जा रहा है, 2 इसमें मिल जा रहा है और इसमें भी 1 मिल जा रहा है, तो 5 types हो गया। Is this clear, guys, in a simple way? Because the whole objective of this session is to make you understand. Yes. Yes. Dilip? It's very clear to me. Okay. So I hope you will not forget the pronoun, these categories. We are going to see next pronoun types in next slide, but I hope this is clear to you. So next slide is
these are also very very important because you might have missed in your classes or you might have not care about these pronouns. उसके लिए आपने तो देखा होगा क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है आपको ग्रामर के बुक में, लेकिन ये कैटेगरी ना थोड़ा सा मिस कर देते हैं. एंड दैट इज द रीजन when you find that everyone somebody everybody इसके साथ क्या लगाएं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि हैज लगाएं, हैव लगाएं, आर लगाएं, इज लगाएं, राइट? तो पहले हम इसको समझते हैं कि होता क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो हियर आर द डेफिनेशंस एंड हियर आर द सिंपल डेफिनेशन. पहले इंडेफिनिट, आप पूरे स्क्रीन को मत देखना, जहां पे मेरा माउस है वहीं पे, बिकॉज आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस. ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? Definite. जो डिफाइंड ना हो. हाँ, जो डेफिनिट नहीं हो. ठीक है, राइट, यू आर क्लोज टू द आंसर. जो देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है कि when you are not being specific, मतलब डेफिनिट नहीं हो. एक होता है कि चलो आप डेफिनिट हो रहे हो, डेफिनिट आंसर दे रहे हो. इंडेफिनिट मतलब ये तो खैर एक डीएनएस, आई थिंक कोई टेक्निकल है क्या इसमें, मतलब आईटी में? यस. अच्छा, उसमें क्या होता है, एक डेफिनिट क्वेरी डीएनएस की आती है ना, और एक इंडेफिनिट रिस्पांस होता है. If you remember in DS. Oh, anyway, no. Approximately. Let's leave it because that's totally a technical part. So ठीक है, तो definite का मतलब होता है कोई चीज निश्चित है, कोई चीज स्पेसिफिक है. लेकिन indefinite का मतलब है कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है. एग्जांपल से समझते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस. You all are invited in today's party. You all are invited in today's party. कोई स्पेसिफिक नहीं है किसके बारे में बात किया जा रहा है, सबके बारे में बोल दिया गया है यहाँ पे. I need to eat something. मुझे पता नहीं है क्या खाऊंगा, मैंने बोल दिया कि I need to eat something, right? तो यहाँ पे all और something ये indefinite pronoun है. अब मैं कहता हूँ anything would be okay. अच्छा, मुझे कुछ भी दे दो, मैं खा लूंगा. I am not being specific. अगर specific होगा तो मैं बोलूंगा okay, give me a pizza or give me burger or something like that, right? But जब मैं specific नहीं हूँ तो indefinite pronoun का use करूंगा. Is this clear? Yes. Okay, next one is demonstrative pronoun. Demonstrative का मतलब क्या होता है? It's a very self-explanatory. Demonstration का मतलब होता है कोई चीज दिखाना. ठीक है, demonstration का मतलब होता है कोई चीज प्रदर्शन करना. And here it is saying कहाँ रखना है इसमें? Demonstrative का मतलब होता है कोई चीज को दिखाना. देखो ये जो 4 प्रोनाउंस है यहाँ पे, these, that, these, those, इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं? टू शो और पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक. किसी स्पेसिफिक चीज को दिखाने या पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे, अरे मैंने ये कैसे लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है गाइस. जस्ट गिव मी अ सेकंड टू करेक्ट इट. आई विल नॉट टेक मच टाइम. that is a book. Okay, these are My book. new laptops. I hope you all are with me still. Okay, not feeling drowsy. No, Drowsy no. मतलब नींद नहीं आ रही है? No. ठीक है, थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन आता हूँ. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये 4 होते हैं और किसी चीज को दिखाने के लिए. देखो ये सेंटेंस कब मैं बोलूंगा दैट इज अ बुक, या तो मुझे बताना है, पॉइंट करना है किसी को कि दैट इज अ बुक, देखो वहां पे एक बुक है, राइट? राइट. या मैं दीज का यूज करूंगा किसी चीज को बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए. दीज आर न्यू लैपटॉप्स. मान लीजिए कि पाल बोल रहा हूँ, ये अनुज है, इनके बॉस आते हैं और कहते हैं कि बताओ कहाँ पे लैपटॉप रखे हो. तो आप बोलते हैं सर दीज आर द लैपटॉप्स, वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है सेंटेंस, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो समथिंग और टू पॉइंट समथिंग, राइट? इज दिस क्लियर गाइस? Yes. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव तो आपने सुना होगा, Yes. Question. क्वेश्चन पूछने के लिए. वेरी गुड रवि. Okay, interrogative pronouns are used to ask the question. It's very simple. ठीक है, तो यहाँ पे what हो सकता है, which हो सकता है, who हो सकता है, whose हो सकता है, whom हो सकता है, right?
सो these are the pronoun. अब इसमें से किसी का क्वेश्चन अगर ये होगा कि पीयूष, हमने तो सुना है कि 9 WH फैमिली होते हैं, 9 वर्ड्स होते हैं, किसी का है क्वेश्चन है? आपने तो यहाँ पे 2 4 5 ही लिखे हैं, क्या वो नहीं यूज कर सकते हैं क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे? Like where? when हो गया, I think you are asking about what, where, when, like this. नहीं व्हाट तो हमने यूज किया है, वेयर हो Where? गया, Where, when. हाउ हो गया, ये तो नहीं है ना यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट? तो वो होते हैं हमारे एडवर्ब जो एक्शन के बारे में बताते हैं, राइट? वो प्रोनाउन नहीं होते हैं, प्रोनाउन सिर्फ यही होते हैं, व्हाट, व्हिच, हु, हुज, हुम, जिसका काम है क्वेश्चन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हु वॉन यस्टरडे, कौन जीता कल, किस मतलब हम नाम पूछ रहे हैं, कौन जीता बताओ, हु वॉन यस्टरडे। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, राइट? वी यूज दिस प्रोनाउन टू आस्क द क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर गाइस? Yes. Okay, now moving ahead, relative pronoun. What is this relative pronoun? Relative pronoun बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस निकल के आता है इससे, बहुत मजेदार सेंटेंस निकल के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेंटेंसेस बनाना है। थिंक अबाउट दिस, द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट, his bike which is 2 days old broken down again. Don't you find interesting? ये सेंटेंसेस देख करके अच्छा नहीं लग रहा? Yes, yes. Yes. So relative pronoun क्या करता है? It introduces a clause that describe the noun. एक clause introduce करता है जो noun के बारे में describe करता है, ठीक है, noun के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे noun को ही रेफर करता है, describe का मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि रेफर करता है। जैसे मैंने बोला the man who stole your bike, यहाँ पे who किसके लिए यूज हो रहा है? man को बताने के लिए। his bike which is 2 days old, यहाँ पे which किस लिए यूज हो रहा है? इस बाइक को बताने के लिए। यहाँ पे देखिए नाउन यहाँ पे यूज हुआ है और इसी को बताने के लिए his bike रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। and these phrase or this clause can be called as adjective clause। अब clause क्या होता है पीयूष, कम ऑन, ये clause क्या होता है? देखिए clause क्या होता है, और दो चीज होता है, एक फ्रेज होता है, एक क्लॉज होता है। फ्रेज कोई भी 2 वर्ड हो या 2 से ज्यादा वर्ड का बना हुआ जो सेंटेंस है उसे फ्रेज बोल सकते हो। लेकिन क्लॉज में क्या होता है ना कि जिसमें आपका सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और एक छोटा सा मीनिंग क्रिएट करता हो, उसे क्लॉज बोल देते हैं। ये भी वैसे ही फ्रेज की तरह होता है, बट फ्रेज में आपका सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है, शायद वर्ब भी नहीं मिल सकता है, बट इसमें जरूर मिलता है क्लॉज में, एंड उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे देख लो विच इज 2 days, इसमें वर्ब है आपको, इसमें कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट भी मिल रहा है आपको, राइट? तो आप मन में बिल्कुल क्लियर रखना कि कहीं पे भी आपको क्लॉज दिखने को मिल जाएगा और कहीं पे भी आपको सुनने को मिल जाए इंग्लिश में कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या है? ये भी फ्रेज की तरह होता है, ये दो से ज्यादा वर्डों के कॉम्बिनेशन है, बट इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, दैट इज अ क्लॉज। सो हियर इट इज अ एडजेक्टिव क्लॉज व्हिच इज डिस्क्राइबिंग दिस नाउन। कहीं ना कहीं अभी एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, एक क्लॉज इंट्रोड्यूस करता है जो नाउन के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट, यहाँ WHO हु रेफर कर रहा है इस मैन के बारे में, या मैन को रिप्लेस कर रहा है। या अगर ये WHO नहीं होता तो मैं क्या यूज कर रहा होता? द मैन स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट, बार बार यही यूज कर रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. All right, very good. Now the last category of pronoun, reciprocal pronoun. What is this reciprocal pronoun? रेसिप्रोकल का एक देखो कहीं ना ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसी में मीनिंग छुपा हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। ओके, यू रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग। मान लीजिए कि कोई आपको बोलता है कि आई लव यू, तो आपको अगर आई लव यू टू नहीं बोलना है, राइट, तो दूसरा क्या बोल सकते हो? मान लो कि आपको दूसरे तरीके से तो बोलोगे कि आई रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग, मतलब मैं भी यही चीज आपके लिए बोलना चाहता हूँ या फील करना चाहता हूँ। Given. या सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज
is something which express a mutual action or relationship. दो लोगों के बीच का action और relation express करता है. जैसे यहाँ पे example है, I and my friend love each other. मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है. They support one another. They support one another. वे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. Now here is the catch. Each other में और one another में क्या डिफरेंस है? एक दूसरे के लिए दोनों यूज होता है, बट जब दो लोगों के बीच में आप यूज कर रहे हो तो each other यूज करोगे, और दो से ज्यादा लोग हैं तो one another यूज करोगे. बी क्लियर इन योर माइंड. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे लगाया है. दे क्या है? दे मतलब कि दो, प्लूरल है ऑफ कोर्स, दो से ज्यादा लोग हैं वहां पे, राइट. But when you are talking about two people, then only use each other, right? So I need few responses from you guys. Ki, have you understood this concept? Pronoun kya hota hai? Very clear and in a easy way. Have you understood? It's totally clear, but I have one question for me. Actually, I always get confused while talking with my client about the difference between other and another. Other and another. Another. Okay. Okay. So this is I would say this is not a part of pronoun. Okay. This is something which you, okay, I'll explain this. ये होता है यूज करने के लिए, ऐसे आप समझ सकते हो कि आप सेम कैटेगरी के चीजों को बता रहे हो, सेम चीज की, ठीक है, तो आप अदर यूज करते हो. दूसरे कैटेगरी की चीज को बता रहे हो तो अनदर यूज करते हैं, ठीक है. आई एम लिटिल बिट नॉट क्लियर ऑन दिस, सो आई डू नॉट वांट टू मेक यू रोम अराउंड दिस, ठीक है. इसके आसपास में मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू अ क्लियर डेफिनेशन अबाउट दिस. इज इट ओके विद यू? It's okay. Thank you so much, Piyush. Actually, this question suddenly came to my mind. It's a very valid question. It happens, but since I am not used to this grammar deep concept, so maybe this is not in my mind right now. But definitely, I promise you, in next class, I will make you understand it in a very easy way. Okay. Actually, sometimes I watch. I saw my client comment on some of the task, and somewhere they use another, somewhere they use other. So always this question always came to my mind. Okay. So why this is two different words for same meaning? अच्छा. Okay, we'll discuss it later. Okay. Thank you. तो अभी अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा, प्रोनाउन आपको समझ में आ गया? देखिए अल्टीमेटली ना, आप कुछ भी करो लाइफ में ना, लास्ट में ये चीज जरूर पूछना कि मुझे जो चीज कर रहा हूँ उससे आउटपुट मिला कि नहीं मिला. तो अभी जितने देर तक हमने ये सेशन लिया, इसका आउटपुट है आपके पास में? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? Yes. Of course. So I want you to note down, ठीक है. आप नोट डाउन करना, एंड डोंट थिंक अबाउट टेकिंग द स्क्रीनशॉट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू ऑलवेज हेल्प यू. नोट डाउन करने का बेनिफिट ये है कि आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं. यू आर एबल टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. You will able to retain for a long period of time. It's a very proven method, I would say. जब आप लिखते हो, मैं भी बुक हमेशा ये अपने पास में नोटबुक लेकर रखता हूँ. मैं हमेशा स्क्रीनशॉट प्रेफर नहीं करता हूँ, बट आई ट्राई टू राइट इट बिकॉज इट हेल्प्स मी. ओके, सो राइट अपना कुछ करना है आपको इसमें. देन वी विल मूव अहेड टू द एडजेक्टिव. मुझे एडजेक्टिव किसी तरह क्लियर करना है, ठीक है. टारगेट रखा हूँ मैं. Guys, say something. I am writing. Okay, where you are writing? On pronoun part? This page, yes. Okay, you can write. I have done that written Okay. part. So what else you can do? You can take the screenshot, but do Right. do Right. write. Oh, taking a screenshot doesn't give the license that you have remembered everything or fulfill the requirement of writing. Okay, you can do it later on. Okay. Yes. So that we can save our time. Save your time. Yes.
Okay, now shall we move ahead towards these adjective parts of speech? Yeah. Yes. Yeah. Anuj, where is Anuj? Anuj Sharma, because I'm not hearing for a very long time. Anuj, come on. You are a human being. Show some enthusiasm. I write in chat section. But say some time, in a class, yes, no. That's how we feel connection. Okay. If I keep on speaking, I feel like, I'm coming here to give just lecture. So it's not a lecture class. It's probably an interactive class, I would say. I'm not your teacher, but I would say that I'm kind of your friend. And that's how it is named, that English PAL. PAL means क्या होता है? किसको पता है? I think अनुज से पूछते हैं, अनुज को पता होगा. Sir, it's for me it's a category. Category? That's why I'm using my surname as a PAL. But आपको पता होगा ना PAL का मीनिंग क्या है? No, not exactly. No. So from Actually, now on, yes, before join the session, like first class, I usually say English PAL, not a PAL. It's English PAL. PAL. Yes, PAL. 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 Okay. And it's interesting English PAL. This tiny pulp, this kind of a tiny pulp will change your whole life. I was also coming from the same place, Abhishek. मेरे को गाना याद आ रहा था वो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. Wow. So पाल का मतलब होता है, अनुज, आप इसके बाद कभी नहीं भूलोगे, फ्रेंड होता है. फ्रेंड जो इंग्लिश वर्ड होता है ना, उसका कह सकते हो सिनोनिम है. ठीक है. तो पाल इज अ फ्रेंड. So if you want to say, hey Pal, how are you? Nothing bad in that. So use it. Yeah. So आप अनुज पाल ऑलरेडी हो, फ्रेंड हो सबके, राइट? Right, sir. Right. और मैं इंग्लिश पाल, फ्रेंड सबके. ओके. Of course, of course. Okay. So and adjective. Okay. Now adjective मैं describe कर दूं. चलो, क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था कि एडजेक्टिव होता क्या है, कोई बताएगा? बिकॉज द मोमेंट यू आस्क क्वेश्चन ना, कहीं ना कहीं आपका सेंसेस इन्वॉल्व हो जाता है. ओके. सो आई वांट यू टू आंसर इफ यू नो समथिंग अबाउट एडजेक्टिव. Adjective describe quality of noun. Quality of noun, very good. Any other? And adjective Right. Adjective is also glorify your sentence, and it will create a more beautification in your sentence also. Beautification can be say, we can say, but the whole idea is like adjective is a word which adds extra information about the noun and pronoun. Okay. Even Avinash want to add something. I'm say about the express about a noun and pronoun in an advanced way, we can say. An adjective is a describing word. Okay. Describing word, right? Okay. An adjective is a describing word. Add extra information about noun pronoun. क्या है मतलब extra information का? मैं अगर बोलता हूँ Avnish is a boy, of course he's a boy. ठीक है. But when I say Avnish is a good boy, तो यहाँ पे मैंने अवनीश के बारे में ना थोड़ा तारीफ कर दिया और एक एडजेक्टिव ऐड कर दिया. Yes. अगर मैं बोलता कि अवनीश इज अ बॉय, उससे भी काम चलता था, मतलब बॉय है, पता है. दूसरा सेंटेंस भी बोल रहा हूँ तभी भी बॉय पता चल रहा है. अवनीश इज अ गुड बॉय, वो भी एक सेंटेंस बॉय ही बता रहा है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है. एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव कि इट एड्स द इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन प्रोनाउन का मतलब है जो अभी हम पढ़ते आए हैं, यानी कि जितने सारे नाउन आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो या कोई नाम है. फॉर एग्जांपल अभी आसपास में कोई चीज आप एक ऑब्जेक्ट उठा लो और उसकी क्वालिटी, उसकी साइज या उसकी शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल आप बता रहे हो, दैट जो वर्ड यूज करोगे दैट इज अ एडजेक्टिव वर्ड. आपका शर्ट है किस कलर का है, ये एडजेक्टिव वर्ड ही बताएगा. इट्स अ ग्रीन कलर. ठीक है, ग्रीन कलर का है.
how old you are, your age, that is adjective. Adjective is a describing word. You are buying a phone, but the feature of phone can be described by the adjective word. कैसा कैमरा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है, राइट? लिटिल बिट मोर ऑन दिस. सो I have categorized few things. Categorize means so that you can easily grasp. देखिए, एडजेक्टिव आप किसी की अपीयरेंस बता सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी पर्सन का. देखो नाउन बोल रहे हैं तो देखो पर्सन और थिंग्स हो सकता है, यानी कि कोई लिविंग थिंग होगा, कोई नॉन लिविंग थिंग होगा. प्रोनाउन उसके बदले में यूज हो रहा होगा. ऑफ कोर्स जो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग नाउन में है उसके बदले में प्रोनाउन यूज हो रहा है, राइट? तो ये जो कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी आप मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बना रखा है, ऐसा कोई कैटेगरी होता नहीं है. अपीयरेंस किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट का बता सकता है कि वो अट्रैक्टिव है, बर्ली है, क्लीन है, डस्टी है, राइट? दिस फ्लोर इज डस्टी, राइट? दिस फ्लोर इज क्लीन. ये क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं. कलर बता सकता है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, डार्क. ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल. रवि इज अ स्मार्ट बॉय. रवि, मैं भी जब भी क्लास लेता हूं मैं किसी ना किसी स्टूडेंट का या किसी ना किसी लर्नर का ही नाम इसमें ऐड करता हूं. रवि इज अ स्मार्ट बॉय, ऑफ कोर्स ही इज अ स्मार्ट. ठीक है, वो क्या बता रहा है इसमें? रवि की क्वालिटी. ठीक है, या अपीयरेंस कह सकते हो. यस, अपीयरेंस या क्वालिटी बता रहा है. भूटान इज अ स्मॉल कंट्री. भूटान की एक साइज बता रहे हैं. स्मॉल, जो भी बोल्ड लेटर आप देख रहे हो ये सारे एडजेक्टिव वर्ड है. भूटान इज अ स्मॉल कंट्री. It is telling you a size of the country. It's a round table. कैसा टेबल है? राउंड शेप बता रहा है. He is an old person. ठीक है, एज बता रहा है. I have a red shoes. कलर बता रहा है. That is an English book. Okay. आपने किसी ने पूछा था, दिलीप ने पूछा था कि इंग्लिश टीचर, ठीक है, और मैंने बोला था कि एक रीजन बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है और क्लास बता रहा है और एक एडजेक्टिव है. नाउ आई थिंक दिलीप यू कैन रिलेट हियर. दैट इज एन इंग्लिश बुक, राइट? यहाँ पे एक ओरिजिन बता रहा है कि वो इंग्लिश ओरिजिन का बुक है, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब इंग्लिश का ही बुक है, ओरिजिन बता रहा है, राइट? यस. सो इसकी कैटेगरी अगर देखोगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे. कलर किसी चीज का क्या हो, कैसे बताएगा? ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, डार्क है. कंडीशन क्या बताएगा? अब्सेंट है, ब्रोकन है, केयरफुल है, डेड है. ठीक है, उसकी स्थिति बता सकता है कंडीशन क्या है. जैसे बोलता हूँ दिस इज अ ब्रोकन ग्लास. अब ब्रोकन क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव है. ठीक है, he is a careful person, he is a dead person. एग्जाम्पल है, कोई ऐसी मीनिंग नहीं है लिटरल. ठीक है, तो ये क्या है? उसकी कंडीशन बता रहा है. on somehow it is telling the information about noun or pronoun. पर्सनालिटी बता सकता है. he is such an annoying person, I don't like him. annoying यहाँ पे पर्सनालिटी बता रहा है. he is a brave guy, I must tell you, he is a brave guy. ठीक है, he is so complex. बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना है. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर. इट यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज हो रहा है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैटर, राइट? क्वांटिटी हो सकता है. आई हैव फ्यू बुक्स. फ्यू यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही तो ऐड कर रहा है ना. मैं बोलता हूँ आई हैव अ बुक्स. ठीक है, आई एम फीलिंग डिजी. डिजी मतलब होता है कि क्या होता है, कोई बताएगा? चक्कर आना. डिजी, चक्कर आना. डिजी व्हेन योर माइंड इज रोलिंग, लाइक चक्कर नहीं आता है, मेरा सर दर्द कर रहा, चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी, राइट? there is a phrase, feeling dizzy is a phrase. You can use it whenever you feel मुझे मेरा सर थोड़ा क्या कर रहे हैं, अगर दर्द हो रहा है तो बोलोगे कि हेडेक हो रहा है. अगर चक्कर आ रहा है बोलोगे फीलिंग डिजी. या ये भी बोलते हैं कभी कभी माय हेड इज स्पिनिंग. तो स्पिनिंग को थोड़ा सा लिटरल मीनिंग हो जाता है. स्पिनिंग मतलब भी होता है घूमना. तो सर घूमता नहीं है,
फीलिंग डिजी, राइट। क्वांटिटी बताता है किसी चीज का, आई हैव फ्यू बुक्स, मैं यही बोल रहा था, आई हैव, यहाँ पे कोई ना कोई चीज मुझे लगाना पड़ेगा कि अ बुक, द बुक, फ्यू बुक, ये एडजेक्टिव वर्ड है। मैंने बोला था प्रोनाउन के चैप्टर में, जब भी आप प्रोनाउन के साथ में नाउन लगा देते हो एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे वही है, आई हैव 4 laptops, for example. I have ample amount of what, pens और कुछ भी, मतलब मेरे को एग्जांपल नहीं आते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। I have ample amounts of knowledge कह सकते हैं, लिखिए, ओके, ample amount of knowledge बोल सकते हैं बिल्कुल। he has countless book, ठीक है, he has countless book। तो ये सारे क्या कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, एंड these are the adjective words, right। सेंस बता सकता है, ओके। सोर मिस होता है खट्टा, बिटर मिस होता है तीखा, कोल्ड मतलब ठंडा, और स्वीट मतलब मीठा, ओके। इट इज अ सोर, इट टेस्ट सोर, ठीक है। मैं कोई चीज खा रहा हूँ और कोई पूछ रहा है कि हाउ डज इट टेस्ट, मैं बोल रहा हूँ इट टेस्ट सोर, ठीक है। इट टेस्ट बिटर, तीखा लग रहा है मेरे को, the taste of the food is bitter, the taste of the food is sour, right। and इसका सेंस बता सकता है कि okay, I find this is a cold water, इसका सेंस बता रहा है, राइट। साइज एंड शेप बता सकता है किसी चीज का, that जैसे मान के चलिए अभिषेक थोड़ा 6 फीट से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा अभिषेक इज अ टॉल गाय, राइट। तो यहाँ पे टॉल क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, राइट। दिस इज अ बिग हाउस, ये उसका साइज बता सकता है। इसी तरह एंगुलर है, ब्रॉड है, सर्कुलर है, डीप है, ये सारे साइज और शेप बता रहा है। टाइम बता सकता है, दिस इज एंशिएंट बुक, ठीक है। ब्रीफ और कंकरेंट, डेली न्यूज, ठीक है। तो व्हाट्स कंकरेंट? कंकरेंट होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि सब्सिक्वेंटली यूज करने वाला, जैसे ये ज्यादातर शायद वो वर्ड में होता है, लीगल टर्म में यूज होता है, या कंकरेंट लिस्ट का नाम सुने होंगे, ओके। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। किसी से मिलाना, कॉन्करेंट। इन दिस कंकरेंट सिचुएशन, ठीक है, पानी में नमक को घोलना, कॉन्करेंट। सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, scientists are heading towards finding the vaccine for children। कंकरेंट का मतलब है कोई चीज दो, मतलब सेम टाइम पे हो रहा है, कंकरेंट। गॉट इट। यानी कि पेंडेमिक की सिचुएशन है, उसी समय में साइंटिस्ट फाइंड, राइट, ओके, वेरी गुड। ऐसे ही आप वर्ड मीनिंग डेवलप कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक मेरा थॉट आ रहा है कि आप वर्ड मीनिंग को ना, आप सोचो कि मैं 5 वर्ड मीनिंग आज लिख के रख लेता हूँ और याद करूंगा, ऐसे नहीं होगा। वर्ड मीनिंग जो मुझे लगा, और मेरे लाइफ में वर्ड मीनिंग कैसे एक्यूमुलेट हुआ है कि सिचुएशन बेस, मतलब अगर मैं किसी सेमिनार में जा रहा हूँ और वहां पे मैंने सुना 5 वर्ड्स, तो मैं उसका मीनिंग फाइंड करूंगा और अपने जो वर्ड बैंक्स है और फ्रेज बैंक है मेरे माइंड का, उसमें स्टोर करता हूँ विद अ रियल एग्जांपल, एंड राइटली shared by Dilip in our WhatsApp group कि don't remember word, remember phrases। देखिए वर्ड आप याद करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसको फ्रेज में यूज करोगे ना, सेंटेंस में यूज करोगे। सो व्हाई टू रिमेंबर ओनली वर्ड, रिमेंबर इन अ फ्रेज, राइट। trust me guys, I do write the phrases still। I just want to give you some example, like last night I wrote something, okay। So phrase is I don't endorse that kind of skill, I don't endorse that kind of skill। Here word is endorse। endorse का मतलब किसी को पता है? इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना ना। अगर मैं इंडोर्स का मीनिंग निकाल करके और हिंदी में लिख लेता या इंग्लिश में ही लिख लेता, सपोर्ट करना, इंडोर्स सपोर्ट करना, इंडोर्स सपोर्ट करना, ऐसे याद करता नहीं याद होता। बट आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, आई डू नॉट इंडोर्स सच काइंड ऑफ बिहेवियर। मैं चेंज कर दिया इसको, इंडोर्समेंट ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज टोटली रिडिकुलस। मतलब मैं डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा हूँ कि सपोर्ट करना इस बिहेवियर का एकदम मतलब हंसने लायक है।
राइट. सो ऐसे ही आप लोग वर्ड मीनिंग डेवलप करना. डोंट रिमेंबर द वर्ड बट रिमेंबर द फ्रेज. ऑलवेज कीप इन माइंड. All right, guys, am I clear with this adjective Yes, slide? yes, sir. Clear. Crystal and clear. Yeah. Okay. कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, because one doubt can spoil your flow of speaking. Okay. Right, sir. How adjective words are formed? The interesting part. अब adjective words कहाँ से बनते हैं? क्योंकि आपको पता है कि नाउन किसी भी तरीके का नाम है तो उसको आप वर्ड में यूज कर लोगे. हाँ, ये नाउन का नेमिंग वर्ड है, इसको यूज कर लो. प्रोनाउन का भी कुछ ऐसा है, उसके फिक्स वर्ड्स हैं, सारे लिखे हुए हैं, उसमें कोई एडिशन रिमूवल नहीं हो रहा है. ठीक है. और नाउन में चलो नया नाम बन जाता है, लेकिन एडजेक्टिव का ना खुद का वर्ड भी है, लेकिन इसके अलावा हम बनाते भी हैं एडजेक्टिव का वर्ड. बनाते हैं का मतलब क्या है आपका? बनाते हैं का मतलब है कि पार्टिसिपल से बनता है, डिटर्मिनर से बनता है, और एडजेक्टिव के खुद के वर्ड्स होते हैं. जैसे गुड हो गया, ओल्ड हो गया, ग्रीन हो गया, ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव वर्ड है. आप वर्ड मीनिंग में सर्च करने जाओगे एडजेक्टिव वर्ड देगा. ठीक है. लेकिन जो पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट है, पास्ट है. अब देखो कई लोगों का कंफ्यूजन होगा. ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होना भी चाहिए. पार्टिसिपल क्या है? अब पार्टिसिपल इज अ वर्ड. एक पार्टिसिपल वर्ड होता है formed from a verb that can be used as an adjective. सिंपल सा मीनिंग समझ लो कि पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो वर्ब से बनाया गया होता है. और किस लिए यूज करते हैं? एडजेक्टिव निकालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, annoy मतलब होता है किसी को परेशान करना. He annoys me every day. वो मुझे परेशान करता है. बट मुझे अगर मान लो एडजेक्टिव यूज करके उसको बताना है, he is a annoying person, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपल दो तरीके का होता है. यहाँ पे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करूंगा. इसी को जेरंड भी बोलते हैं किसी को. अगर नहीं सॉरी, जेरंड नहीं, जेरंड नाउन निकालता है. सॉरी गाइस. प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड देता है. he is a annoying person. कौन सा पर्सन है? annoying है. it is describing about the person. Getting my point? This is a cleaning machine. कौन सा मशीन है? cleaning. Now clean is a verb. Now we got this word cleaning from the verb because of the participle. हम कहीं ना कहीं वर्ब से एडजेक्टिव निकाल करके लेके आ रहे हैं. और देखोगे तो एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं, आईएनजी सब में लगा हुआ है तो कह भी सकते हो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जिसमें आईएनजी लगा होता है, जिसमें बोलता हूं ना आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, वो वाला फॉर्म होता है. ये ट्रिक है समझने का. ठीक है. इट बॉइलिंग वाटर. ओके, यू कांट पुट योर फिंगर इन अ बॉइलिंग वाटर. यू कांट पुट योर फिंगर इन अ बॉइलिंग वाटर. किस तरह के वाटर में आप फिंगर नहीं रख सकते हो? बॉइलिंग वाटर में. यहाँ पे वाटर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. इट इज अ बॉइलिंग वाटर फॉर एग्जाम्पल. राइट. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको मिलेगा. जैसे ब्रोकन आपने सुना होगा. ठीक है, आपने ब्रोकन सुना है? They like he, spelling is here is spelling is not correct, I think. I also feel so. One second. Yes, let me correct. तो ऐसा होना चाहिए ना? BROKEN, broken. Yes, that's right. Okay, thank you for correcting. Okay, broken glass. अब ब्रेक का मतलब तो सबको पता है ना, ये वर्ब होता है. He is breaking my glass, he is breaking my laptop, he is breaking my head for a literal meaning. मेरा सर तोड़ रहा है. Okay, so यहाँ पे broken थर्ड फॉर्म हो जाता है. तो इसको कैसे बोलूंगा? It is a broken glass. ये जो ग्लास है वो broken है. It is describing about the glass. Glass is a noun. And as we discussed, in adjective वो word होता है जो noun या pronoun को describe करता है. So here you find the proof. It is a broken glass. This is a clean room. कैसा रूम है? This is a room. Simple sentence मैंने बनाया. This is a room. But here if I use cleaned room, this means it is describing about the room. Room कैसा है? Cleaned है. So this is a adjective. Okay. Written word. Okay. या written letter आप बोल सकते हो. This is a written letter. ठीक है, ये लिखा हुआ पत्र है. पत्र है. Okay. So these are the
verb 3 which can be used as a adjective. Clear, guys? Yes. Is it sounding Oh. clear and you are able to grasp it easily? Any doubt so far? Yes. No, I have no any doubt, but I have question here. It's not a question, it's just for fun. And I think we can learn something new from here. So it's a, you have mentioned that broken glass, right? It means it's physically broken. But what's about broken heart? Wow. So you want to know something or you want to just add something? I want your opinion about this because you are means heart is broken, but not physically. It's emotionally broken, and it's here is physically broken. I think Abhishek would like to add on. How can you relate? How can you relate this? Only who Abhishek, as can always, accept this answer who has broken the heart. Is Abhishek there? No, Abhishek is not. Only who can answer that answer, who can answer the question because who has broken the heart. अच्छा, ये चीज हम डिस्कस करेंगे संडे के हमारे जो स्पीकिंग सेशन है. ओके, हाउ वी कैन हील द broken heart. Okay, how can we heal the broken heart? Okay? Because broken glass can be replaced by a new glass, but how, what about But broken heart can't be replaced. Very good, very good. That's interesting. Full filled with another guys. अरे रवि, लिटरल वो उसमें नहीं जाना है, एनालिसिस में नहीं जाना है कि कैसे आप सोल्व करना है, ठीक है? It's just a thought. Piyush, I think everyone waked up after hearing the word broken heart. Yes, I think. And I suddenly woke, what is this here, broken heart? It means it's a very interesting subject for everyone. It is. I'll tell you why. It is because this is something which everyone can relate to. You know, right? Someone has gone through like this phase, so they can relate. They can remember. Maybe you have reminded their old time. Who knows? आपने उनको याद दिला दिया by this. Anyway, guys, I want to draw your attention back to this slide because we are about to close this. I'm not going to extend today, so please be attentive here. So now the next way to form adjective words are is determiner. डिटर्मिनर से भी एडजेक्टिव हम बना सकते हैं. कैसे? जैसे डॉग है, डॉग क्या है? एक नाउन है. अब डॉग को मैं जैसे बोलता हूँ वन डॉग, ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है, कितने डॉग हैं, मेनी डॉग्स, वन डॉग, राइट? डिटर्मिनर किस, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि डिटर्मिनर 4 होते हैं. चारों को यूज करके कहीं ना कहीं आज मॉडर्न ग्रामर में इसको हमें एडजेक्टिव के तौर पे माना गया है, और कहीं ना कहीं आप एनालिसिस करोगे तो निकल के आएगा. देखो बोलोगे ना, जब बोलते हो ना, द मोमेंट यू से दिस इज माय डॉग, यू आर समहाउ डिफाइनिंग अबाउट दैट डॉग, यू आर एडिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज माय डॉग, यू आर बीइंग स्पेसिफिक अबाउट दैट डॉग. एंड डिटर्मिनर डिटरमाइंस whether something is specific or unspecific. डिटर्मिनर क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है. A determiner is a word placed before noun to specify quantity. कोई चीज एक है या अनेक है या कौन सा है, डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर यूज करते हैं. तो यहाँ पे डिटर्मिनर यूज हो सकता है एज ए एडजेक्टिव. माई डॉग. अच्छा, यहाँ पे देखो, ये अभी माई डॉग को मैं रिलेट करता हूँ. अभी मैंने कुछ देर पहले प्रोनाउन आपको बताया था, अगर इफ यू रिमेम्बर. यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे बनता है? प्रोनाउन के साथ में नाउन ऐड करते हो तो एडजेक्टिव. माई डॉग, आवर डॉग, योर डॉग, हिज डॉग. रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे? कनेक्टिंग? यस, नो? यस. सो प्रोनाउन के साथ में, ये वाले प्रोनाउन के साथ में जैसे ही नाउन लगाओगे एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ऑलराइट. सो विद दैट we can say that adjective can be formed by these categories. एक तो एडजेक्टिव का खुद का वर्ड होता है, पार्टिसिपल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, यानी कि वर्ब से हम एडजेक्टिव निकालेंगे. हमें अब वर्ड नहीं मिल रहा है एडजेक्टिव का, हम वर्ब से बनाएंगे, यानी कि V4 में बना लो या V3 में बना लो, उसका एडजेक्टिव बन जाएगा. डिटर्मिनर से हम बना लेंगे माई, दैट, दिस डॉग, दैट डॉग, दिस डॉग्स, दोस डॉग्स, राइट? दीज आर द फॉर्म. एक ट्रिक है एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का. 5 मिनट है, क्विकली. ट्रिक क्या है? यानी कि सब्जेक्ट तो आपको पता है,
सब्जेक्टिव होता है जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात किया जा रहा होता है सेंटेंस में। तो जब भी ये सारे वर्ड लगा करके आप सब्जेक्ट के बारे में पूछोगे ना, विच सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, इट वाज द ब्लू बकेट, विच बकेट डिड यू सी, ब्लू बकेट, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव मिल गया ब्लू बकेट। आई बॉट रेड पोटैटोज, व्हाट काइंड ऑफ पोटैटोज डिड यू बाय, रेड पोटैटो, ये रेड आपको मिल जाएगा। देयर वर फ्यू कार्स इन द पार्क, हाउ मेनी कार्स वर देयर इन द पार्क, फ्यू। He is an Indian student, which student, Indian student। ये ट्रिक है, आप चाहो तो इसको एक्सप्लोर करोगे, कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले, प्रैक्टिस करना चाहो तो ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, उसके ऊपर और कमांड अच्छा बनेगा आपका। क्लियर गाइस? Yes. Now quickly, we have how many minutes we have left? Can somebody tell me the timing? 5 मिनट टाइम है, ओके, 5 मिनट। ऑलराइट, सो 5 मिनट में हम क्विकली क्या कर रहे हैं, I think there is no benefit of taking class if you are not practicing, so I'll give you a quick exercise here and you can give a quick answer over here. So exercise is make 5 sentences, okay, using adjective। 5 सेंटेंस आप बनाओ एडजेक्टिव का यूज करके। You can describe the quality of your friend, family, mobile, and I don't think I need to explain more about what is this adjective word, or do I? क्या मुझे करने की जरूरत है अभी एडजेक्टिव डिस्क्राइब? नहीं ना, तो आप 5 sentences बनाओ, and so that you can also validate your knowledge whether you have understood properly or not, right? So give a little bit time to make 5 sentences. You can tell or you can paste in the chat box, whatever way suits you. And I have some important announcement for tomorrow's session, so stick with that, stick with this session. They live in a beautiful house. Who Ravi would is like to go first? doing- Dilip, would you like to give a try? Yeah. I'm trying. Okay, I have an option for you. I have an option for you. Describe your boss in the first company. Or now you can describe in 2 ways, in a good way or bad way. Now it's totally up to you. Anuj, he is someone who worked together in first company, so that's why I know him personally. That's why I'm deliberately giving this option. Okay, so Dilip, describe about your boss. It was the first boss in the Clear Path Technology. Yeah. Actually, he was a very good man, and his name is Satish. It's a Satish, so he's very